welcome to another episode of the Enactus India show only on Zee Business। मैं हूँ विभा सचदेव। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी को छू रहा है Enactus, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स के जरिए मदद कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि Enactus India नेशनल कंपटीशन 2016 की सारी डिटेल्स देंगे हम इस एपिसोड में। तो क्या है Enactus और क्या है Enactus India नेशनल कंपटीशन 2016, जानते हैं रूही की इस रिपोर्ट में। Enactus India की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। तब से अभी तक Enactus ने एक लंबा सफर तय किया है and now it has over 140 active colleges, over 4,000 active students and around 122 community projects. Enactus India Enactus Worldwide की एक सब्सिडरी की तरह काम करती है and Enactus Worldwide की ग्रोथ के लिए इंडिया प्राथमिक देश है as it has one of the largest operations. The student volunteer hours are more than 4 lakh. स्टूडेंट्स के इस जज्बे को सलाम करने के लिए Enactus India हर साल नेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। The Enactus India national competition brings together top students, academicians and business leaders from around the country. Enactus is doing something which is completely different than other NGOs or the other people do. It has nothing to do with business. It has nothing to do with something that will change, but it is something really to do with changing lives of people. Always we talk about business, and business is what most of the corporates look at. Social entrepreneurship is something that we have never thought about it. And first time we are judging the students who have been involved themselves in social entrepreneurship, in projects that is, it seems to be very simple, but it is really difficult. Reaching out to poor people in the villages, going down, looking at something that they can sustain, looking at something that they can evolve, looking at something at a long-term perspective wherein it looks at social, it looks at emotional, it looks at other connects also, establishing over a long-term period. Something really wonderful. Okay, ladies and gentlemen, I can see students. इन स्टूडेंट्स के लिए नेशनल कंपटीशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री लीडर्स और एकेडमिशियंस के सामने शोकेस कर सकते हैं, who serve as the judges. The Enactus India national champion team advances to the prestigious Enactus World Cup then. पूरे साल जब सारा काम करके नेशनल इवेंट पे आते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट को शोकेस करते हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होता है, माहौल गजब का होता है नेशनल्स पे और बहुत मज़ा आता है नेशनल से। नेशनल इन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स ऑफ अदर कॉलेजेस। हम लोग पिछले 2 साल से अटेंड कर रहे हैं नेशनल्स। पिछले साल दिल्ली में था और उसके पहले वापस इसी जगह बॉम्बे में था। तो जो हम लोग टीम्स है वो पूरे साल हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते, पर ये एक समय जो हम जिसका बहुत इंतज़ार करते हैं हम लोग, क्योंकि हम बाकी सारे टीम्स के साथ मिल सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स देख के काफ़ी हमें सीखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ 2 दिन पूरे बिताओगे तो आप लगभग 5 से 6 बाकी टीम्स का देख सकते हो प्रेजेंटेशन। तो उससे क्या है कि आपको पता चल जाता है कि बाकी कहाँ का टीम्स क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है, कौन से कम्युनिटी के साथ क्या कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन होता है। इस साल Enactus नेशनल कंपटीशन हुआ मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में। Every year national competition sees participation of thousands of students और इसलिए Enactus की टीम्स इस इवेंट की तैयारी में 2-3 महीने पहले से ही जुट जाती हैं। We started off our practice for the presentation about 4 months ago. That was कि who will speak, who will do what, presentation में क्या क्या होना चाहिए, projects की pictures click करना, क्योंकि उसके बाद we had our exams, so then we had to focus on that also. And as soon as our exams got over, we immediately started off with this. Then we had to go for our internships. तो वहाँ से आके we used to come back at 5:30. Then वहाँ से पूरा रात तक prepare करना, like रात को 11-12 बजे तक। Then every Sundays we were all together practicing. So yeah, it was a big, huge task, tedious task. But I'm glad we are here.
इस साल करीबन 70 से भी ज्यादा कॉलेजेस ने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, हाईएस्ट टिल नाउ। नेशनल्स में कंपटीशन स्ट्रॉन्ग एंड टफ होता है एंड द स्टूडेंट्स वांट टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। सबसे अच्छी बात नेशनल्स की ये लगती है कि हमें बाकी टीम से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनके मॉडल्स के बारे में देखने को मौका मिलता है, तो हमें भी एक आइडिया मिलता है बाकी सब काम क्या कर रहे हैं और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से नेशनल्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आके एक दूसरे के बारे में, इनएक्टिस के बारे में बातचीत करने का। इनएक्टिस इंडिया स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सस्टेनेबल सोल्यूशन तो क्रिएट कर ही रहा है जिसने कई जिंदगियों को छुआ है, साथ ही स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटीज भी इनकलकेट की है। The kind of passion and energy they have and the team working, you could see it. Though there are 5 speakers on the stage, but there is a full group behind. And I think they've done a great job, and I'm sure with as the year pass by, they will keep improving further, keep using technology, keep getting more innovative and creative. कंपटीशन के दौरान स्टूडेंट्स बेहतर और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दें, इसलिए इनएक्टिस ने अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ मिलकर इन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया टू एनहांस देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स। जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर आई कांटेक्ट मेंटेन करना एंड आंसरिंग क्वेरीज ऑफ द जजेस, इन सभी बातों के बारे में बताया गया। आज इनएक्टिस के लोगों को बुलाया गया था सिखाने के लिए कि जो इनएक्टिस नेशनल कंपटीशन हो रहा है उसमें हमें कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए और सारे बच्चों को मिलकर कैसे एक प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो आज हमें स्किल्स सिखाई गई, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि वहाँ बहुत सारी टीम्स होती हैं जो आपस में कम्पीट करती हैं, तो एवरीबडी सब लोगों को कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, नए तरीके। To make the event successful, इनएक्टिस इंडिया ने इस बार गैप ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया। गैप प्रोग्राम में इनएक्टिस एलुमनाई और कॉलेज स्टूडेंट्स जो फिलहाल इनएक्टिस की टीम में नहीं हैं, उन्हें इंटर्नशिप ऑफर की गई। इस इंटर्नशिप के जरिए उन्हें मौका मिला टू वर्क फॉर इनएक्टिस एंड इट्स नेशनल कंपटीशन। मैं इनएक्टिस के गैप ईयर प्रोग्राम का पार्ट हूँ। इनएक्टिस इंडिया का न्यू इनिशिएटिव है ये। सो यहाँ पर हमको ये लोग एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर दे रहे हैं काफ़ी, एंड इन रिटर्न हम लोगों को काफ़ी इनएक्टिस में कंट्रीब्यूट करने के लिए मिल रहा है। इनएक्टिस ने इस साल फॉर्चुनेटली अपने एप्लीकेशंस रोल आउट करे थे फॉर दिस गैप ईयर प्रोग्राम, तो मैंने इमीडिएटली अप्लाई करा था उसके लिए एंड मेरा लकीली सिलेक्शन हो गया उसमें आफ्टर फ्यू राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ एंड ग्रुप डिस्कशंस। सो अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कंसिडरिंग कि मेरा खुद का स्टार्टअप भी है, तो उसमें इसका जो एक्सपीरियंस मेरे को इनएक्टिस इंडिया से मिलता है, आई कैन इम्प्लीमेंट इट देयर। वी आर करेंटली इन द कोर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग इनएक्टिस के नेशनल्स। हुआ इनएक्टिस इंडिया नेशनल कंपटीशन 2016 के इस 2-डे इवेंट में और कौन सी थी विनिंग टीम, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो बी विद अस राइट हियर ऑन जी बिजनेस, क्योंकि ब्रेक के बाद वील बी बैक विद मोर एक्शन। Welcome back. You're watching the Inactus India show only on Z Business with me, Vibha Sachdev. इनएक्टिस का एम है आज और कल के टॉप लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर बिजनेस के जरिए एक बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया बनाने का। कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिला इनएक्टिस इंडिया नेशनल 2016 कंपटीशन में, जो कि बहुत ही फन फिल्ड और इनोवेटिव थे। क्या कुछ हुआ इस 2-डे इवेंट में, आइए जान लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए देश के कोने-कोने से पहुंचे। The rooms of the Taj Lands End Hotel were full of energy and positivity. और होगा भी क्यों नहीं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का जिम्मा उठाया है। स्टूडेंट्स तो इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार करते ही हैं, बट इंडस्ट्री लीडर्स को भी इस यंग टैलेंट से सीखने का अच्छा मौका मिलता है।
I think compared to what we would expect from so-called a mature social changes, if I can loosely use that word, it was much better compared to what you see as college students presenting. One main differentiator, at least which I could think, was more in terms of they being more cognizant about what social issues are going around. So I think rather than just what is the impact they are creating, but even being cognizant is very important in today's age, for people to at least be knowledgeable and knowing enough that that is something which they need to tackle. पहला इनैक्टस नेशनल साल 2004 में हुआ था, तब से अब तक कंपटीशन में काफी परिवर्तन हुआ है. Over the years, the number of participating teams has increased, so has the number of corporates. टॉप कंपनीज के लीडर्स जैसे KPMG के रिचर्ड रेकी, HUL के संजीव मेहता और वॉलमार्ट इंडिया के क्रिश अय्यर भी कंपटीशन को एंजॉय करते दिखे. I think each year there is a progress because now they have seen the history. So now they need to come and do a little shade extra. New ideas are being looked at, and more participants. You have IIT from Delhi, you have IIT from Ropar, you have Mumbai. All across the country, it's spreading. इस 2 दिन के इवेंट में स्टूडेंट्स ने शोकेस किए कम्युनिटी आउटरीच प्रोजेक्ट्स और बिजनेस वेंचर्स जो एंटरप्रेन्योरियल एक्शन के जरिए प्रोग्रेस इनेबल कर रहे हैं. ये कंपटीशन इन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन्हें साल भर की मेहनत के बाद अपने प्रोजेक्ट्स के लिए न सिर्फ रिकॉग्निशन बल्कि प्रोजेक्ट्स को बेहतर करने के लिए वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलता है. I know Amul is sourcing milk from Haryana. And Amul has actually scaled up pretty much all the things that you have spoken about over there in terms of nutrition, in terms of better output. टेंशन, नर्वसनेस, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, डिस्कशन, ये सब देखने को मिला इवेंट की शुरुआत में, एंड दैट टू एट 7:30 in the morning. पहले दौर में इन टीम्स को ओपनिंग राउंड लीग में डिवाइड किया गया. यहाँ पे कितना प्रेशर था परफॉर्म करने का. वहाँ पर भी हम जब प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो हमेशा एक वो रहता है कि देयर आर लॉट ऑफ टीम्स, गुड टीम्स दैट कम्पीट विद अस. लास्ट ईयर भी हमारे साथ IIT दिल्ली था और देयर आर लॉट ऑफ टीम्स दैट परफॉर्म रियली गुड. ये सब माइंड रखना पड़ता है. यहाँ पर आके इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे फॉर्मल्स में सब सूट अप करके आते हैं. बहुत प्रेस्टिजियस एक वो है और एक हमेशा से एक नर्वसनेस फील होती है. Finally, the nervousness transformed into cheers and smiling faces once the competition began. ये हैप्पी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिला हर लीग में. अब चाहे वो रूकी टीम्स हों या ओल्ड इनैक्टर्स टीम्स, each and everyone tried the level best. और प्रेजेंटेशंस भी ऐसी जिसने रूम्स में बैठे लीडर्स को काफी इम्प्रेस किया. This is something which is quite, in fact, eye-opener for me because at this age, if these kids, if they come back and talk about such socially relevant issues, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब आके इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं. So all the things which they discussed, majority of them I would say, right, is something which is very relevant in today's time. मैं पहली बार आया हूँ इस कंपटीशन में जज करने को और मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रेजेंट किया है हमको और पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड यहाँ पे बैठा हुआ था जो उनको ग्रिल कर रहा था. जो कॉन्फिडेंस से बच्चे लोग ले आए हैं सामने, सो काफ़ी इम्प्रेसिव थे उनके प्रेजेंटेशन. कुछ प्रेजेंटेशन तो एकदम स्टैंड आउट थे. छोटी उम्र में ये अचीव करना बहुत बड़ी बात है और जो पैशन से लोग आ रहे थे, मतलब उसमें दिख रहा था कि लोग एक्चुअली उस पर काम कर रहे थे और ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं था. A room with over 1,000 people, mainly Enactus students, corporates and a distinguished panel of top executives would have left anyone nervous, but the top 3 finalists stole the show. वैसे तो किसी भी कंपटीशन में एक ही विनर होता है, लेकिन यहाँ Enactus Nationals में हर एक इंडिविजुअल अपने साथ कुछ लेकर वापस जाता है. हो भी क्यों ना, each of the students here is a winner, a leader. They are Enactus.
एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशंस। तो चलिए जानते हैं जजेस से कि कितना टफ था उनके लिए इन प्रेजेंटेशंस को जज करना। It was not easy because very difficult to say between very good and excellent, and each of the team had done a great job. So yes, certainly it really puts pressure in terms of selecting one of them. Yeah, it was definitely stiff competition. I think each of the student teams have come up with fabulous solutions. There was some consistency in some of the solutions, for example with the sanitary napkins and the toilet rehabilitation or building and constructing of toilets across North and South India. I thought it was a little bit of consistency coming in there, so that's what made it a little bit hard to judge. But at the same time, there were some differentiating factors coming in where they, took in different sort of ways and approaching the similar sectors that they're working on. I'm always impressed with very unique ideas and unique concepts. Students, business leaders, academicians, presentations, questions and answers, celebrations, networking, fun, food and of course, lifetime memories. Sums up the Enactus National Competition 2016. 2016 में एक बात तो पूरी तरह से साफ थी कि सारी टीम्स एक से बढ़कर एक थी और कोई भी प्रोजेक्ट किसी से कम नहीं था, लेकिन कोई ना कोई विनर तो होना ही है। तो कौन सी थी ये विनिंग टीम जो अब जाएगी इनैक्टस के वर्ल्ड कप 2016 में, आइए जान लेते हैं। इनैक्टस नेशनल्स में अब वो पल जिसका स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सेमीफाइनल विनर्स के ऐलान का। आशा और प्रार्थना, स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट से भरे इस रूम में हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, जीत उसी की हो जो सबसे बेहतरीन टीम हो। और फिर स्टूडेंट्स से सवाल जवाब और काफी विचार विमर्श के बाद जजेस ने विजेता को चुना। जहां रिजल्ट्स ने काफी टीम्स को मायूस किया, वहीं टीम्स हु मेड इट टू द टॉप वर थ्रिल्ड बाय देयर विन। हंसते मुस्कुराते इन चेहरों की खुशी ने पूरे रूम में एक पॉजिटिविटी भर दी। 70 टीम्स में से टॉप 3 के मुकाम पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं उन टॉप 3 टीमों से जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स बल्कि अपने प्रेजेंटेशन स्किल से भी जजेस के दिलों को छू लिया। ये टीम है इनैक्टस आईआईटी दिल्ली, इनैक्टस एसआरसीसी और इनैक्टस एसएससीबीएस। आपको ये भी बता दें कि तीनों प्रेस्टिजियस कॉलेजेस दिल्ली के हैं। थर्ड रनर अप एसआरसीसी ने अपने प्रोजेक्ट सत्वा, असब और अजमत को जिस उत्साह से जजेस के सामने पेश किया वो काबिले तारीफ था। We have already identified 11 villages for expansion. In just 1 month, the income for अपने इन प्रोजेक्ट से एसआरसीसी अपनी कम्युनिटीज को आत्मनिर्भर तो बना ही रहा है, साथ ही साथ उनकी आकांक्षाओं को भी नई उड़ान दे रहा है। जहां प्रोजेक्ट सत्वा से इनैक्टस एसआरसीसी गांव की औरतों को सशक्त बना रहा है बाय ट्रेनिंग देम इन डेयरी प्रोसेस, वहीं प्रोजेक्ट असब से वाटर कम्युनिटी से क्ले बेस्ड वाटर फिल्टर्स बनवाकर उन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर रहा है। वहीं एसआरसीसी अपने प्रोजेक्ट अजमत के जरिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रोजी रोटी का जरिया मुहैया करा रहा है। IIT Delhi was the winner of Enactus National 2015 और ये जज्बा और एंथुजियाज्म उन्होंने कायम रखा अपने इस साल की प्रेजेंटेशन में भी। IIT Delhi भले ही इस साल प्रोजेक्ट्स के लिए विनर्स ट्रॉफी ना जीत पाया हो, मगर उनकी प्रेजेंटेशंस ने जजेस का काम और टफ कर दिया था एज दे गेव एन एनग्रॉसिंग प्रेजेंटेशन। इनैक्टस आईआईटी दिल्ली के दोनों ही प्रोजेक्ट्स तितली और निर्मलया रिलेटिवली नए हैं, पर जिस तरीके से वो अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। The winner of the night was शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज and their happiness had no limit. SSCBS पहले 2 बार भी नेशनल चैंपियन रह चुका है। तो चलिए उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद आपको मिलवाएंगे इनैक्टस SSCBS की टीम से। जहां इनैक्टस
SSCBS का प्रोजेक्ट उड़ान डिजिटल लिटरेसी को ग्रामीण इलाकों में बढ़ावा दे रहा है, वहीं अपने प्रोजेक्ट राहत से इन स्टूडेंट्स ने जिम्मा उठाया है दिल्ली स्लम्स में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का। हमारे साथ है नेशनल कंपटीशन के विनर CBS कॉलेज। मैम, स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, काफी महीनों से प्रिपरेशन चालू हो गई थी, तो हाउस द फीलिंग, you have won this competition, how's the feeling? It's just simply amazing. A lot of vacuum right now, not sunk in yet, but I'm sure we'll have a brilliant party later and a celebration. And we had a very, very tough competition and lot of good teams and amazing competition to win it at this level. Commendable work by the entire team. A round of applause for each one of the students involved. So simply amazing, amazing feeling. So the passion results in this, it is just brilliant. इसके अलावा कंपटीशन बहुत ही टफ था, तो ऐसा लगा था कि you will not make it to the top three or top 5 and IIT Delhi was very good, even SRCC was very good. थोड़ा सा nervousness नहीं हुई कि probably they might win. Always a very tough competition. All teams work very hard throughout the year, and given the nature of their projects, they are all doing very good work. The success, I would say, does not go to 5 or 6 people, but rather the entire team. And yes, certainly we had doubts whether we would make it or not, but I think I am very proud of my team, each and every one of us, that we've come so far and finally won it. अब जाके सीधे वर्ल्ड कप की तैयारियां चालू हो जाएंगी। We went to World Cup once before. It's another ball game. It's much tougher because you're competing with different countries. So yes, definitely that would require much more preparation. SSCBS अब इंडिया को एनएक्टिस वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करेगी, जहां टीम compete करेगी 36 एनएक्टिस कंट्रीज की नेशनल चैंपियन टीम से। This year the World Cup is going to be held in the city of Canada, Toronto, and everyone is eagerly waiting for it. Such a great show of talent, of projects, of kind of impact enacted students have created. बहुत अच्छा चला. The feedback from judges, feedback teams from teams has been extremely great. Very excited for the team that has won, Shahid Sukhdev College of Business Studies from Delhi. The team will now be representing India at the Enactus World Cup, which is going to be held in Toronto, Canada. It's an exciting 3-day event that will bring all the national champions from the 36 countries together. Teams will get to meet other teams from other countries, showcase their projects, network with judges, as well as attend a lot of panel discussions. अगर आपको लगता है कि एनएक्टिस नेशनल सिर्फ प्रेजेंटेशंस और सवाल जवाब तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इवेंट में इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज जैसे नीति आयोग के अमिताभ कांत, गणेश कृष्णन और रोनी स्क्रूवाला ने स्टूडेंट्स के सामने अपने बिजनेस लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया। ये शाम यहीं तक नहीं थमती, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। जी हाँ, ये इवेंट भले ही सिर्फ 2 दिन चला हो, मगर जो यादें और सीख स्टूडेंट्स यहाँ से अपने साथ लेकर गए हैं, वो इनके साथ जिंदगी भर रहेगी। So this is Ruhi Kurere signing off from The Enactus India show में आज बस इतना ही। I hope you enjoyed watching this show as much as we enjoyed bringing it to you. लेकिन हम आपको ये बता दें कि Enactus India नेशनल कंपटीशन 2016 की ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम आपको विनिंग टीम से तो बिल्कुल मिलवा ही चुके हैं, लेकिन क्या है इनके प्रोजेक्ट्स और किस तरह से ये लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। Till then, keep watching Zee Business, आपका फायदा।